Good afternoon, guys. Welcome to another edition of Fordcast, where we try to follow the whole placement process and make it as easy and enjoyable for you as possible. So, you have heard that Deloitte is coming back and it is trying for an analyst position. And a lot of core sector people are worked up about it, and this is the opportunity, etc. So, I got one of our previous alumna from KIT University, Akshat Shubham from 2018 graduating batch. Let's listen to him on what he has to say for you. Thank you so much, sir, for inviting me to this podcast. I'm really a big fan of you, like how you take care of students personally and these unique ideas you have as a podcast. I'm really fortunate to be a part of this. So, with my experience of being a Kitian of this entire placement process and how I got selected for Deloitte, I will share it, and I just hope that it get benefits to my juniors. It will definitely do benefits in huge terms, and not just for this year. And since this is going to be up on YouTube probably, then it will be giving them benefit for days and years to come. So Akshat, 2017 was the year you got placed. I distinctly remember the electronics auditorium where you guys were sitting and your Yes. name was called out and you were at the end of the thing. Describe the whole placement process from the beginning to the end in a way that you find it enjoyable, and so do my kids. Definitely. So I'll take this discussion to a personal zone, but like how placement was for me. Yeah, yeah. And I think that it will really let our students know further about it. So basically, during our placement, I went through a breakup. Now, this you see, where there was anxiety in mind ki kya hoga, kya nahi hoga, and at the same time, I had breakup, and my relationship was 4 years, 4 years relationship. So it had a huge mental impact on me. So this was the scenario during my placement time. So, and there was second thing during Deloitte placement, I was mentally prepared that I am not going to be selected because during my time at 2017, there was a notion that Deloitte comes and they pick up people who look smart and who speak smart. And these both were the thing which I'm not so good at. That time, my English was also not very good. So my expressive skill and my communication skill is good. And if you'll judge by my grammar, it's still not that good. So I was mentally prepared, यार कि तेरा Deloitte में तो होने नहीं वाला है. This is the first thing. But then it gave me a very added advantage. And the moment I entered to GD, first thing, I was stress free. I was not very stressed because I was not expecting that I would be selected. So I just gave my 100% intuitively. So in GD, whatever the topic was, I just wanted to make my point, but still lots of people were not willing to make me speak. So there also, my head was as it was calm. So then I thought that okay, let's wait for my chance and I'll conclude it. So I just gave it a conclusion, and that's how I was there for GD. And second thing, in my personal interview, I gave it in Hindi. So this was the trick because in my notion, it was there that Deloitte comes for English, and my interviewer was a South Indian guy. He did not understand English, but he just asked me that what is so special about you. He asked me this question. So I said, which was my specialty, that sir, I'm a good teacher. So my roommates and my friends who are weak in coding, I teach them coding. I know how to teach students who don't usually understand in class. So he asked me that what is so special in your teaching that weak students can understand you. So you teach me. Then I said, sir, I'm much more comfortable in Hindi. So I'll be teaching you in Hindi. So I was genuine there. I was stress free and I taught him for 20 minutes in Hindi. So, so this was the thing where we thought कि Deloitte में English बहुत जरूरी होता है, but then I actually came to know that communication skill जरूरी होता है कि आपके mind में जो है आप उनको समझा रहे हैं. So he saw something on me, and that's how I was selected. So the point is that entire situation in my life was reversed that time. I was rejected by SAP. I was rejected by Amazon. I had a breakup. But still ultimately I realized that अंत में सब ठीक हो जाता है. If you are centered, if you are not so much stressed due to the things,
then you will have that intuition that हमको क्या करना है at particular time पे, हमको कैसे react करनी है, and then we make through it. So this was my Deloitte experience out of it, placement experience. So I think we should continue in Hindi itself. I mean, वही उसी में चलते हैं फिर आगे. ठीक है. I mean, it was a lot of things that went wrong for you. You got rejected, and I don't know whether that breakup thing was unilateral or collateral or bilateral, whatever. लेकिन सही में ऐसा है कि क्या चीज तुमको उस वक्त पुश कर रहा था कि ये सब तो अपने लाइफ के साथ में एकदम झोल झाल चल रहा है, अगर कर किस लिए ये प्लेसमेंट करें हम? What pushed you? So to be very honest, उस समय मेरे माइंड में ऐसा था कि देखो बेटा, अगर अभी तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं लगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे. This is what that time I used to think कि anyhow you need to crack some अच्छा company so that your life is set. But with time I have realized that this concept is not actually correct. क्योंकि बहुत सारे क्योंकि अब मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस ही है. सो आई हैव सीन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं लग पाता है, बट अल्टीमेटली उन्हें भी सक्सेस मिलती है. दिस इज अ थिंग. बट उस समय मेरे माइंड में था कि चलो ब्रेकअप हो गया है, बट लाइफ इज गोइंग ऑन, हमको लाइफ बनाना है, स्क्रैच से लाइफ को फिर से शुरू करनी है, एंड आई विल डू इट. दिस वाज द जस्ट मोटिवेशन. आई वॉज अ गुड कोडर, सो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एसएपी में हो जाए. रिटर्न राउंड क्लियर भी हो गया, टॉप 25 में मैं आ गया, बट इंटरव्यू आई कुड नॉट क्लियर. सो ऑल दीज रिजेक्शंस वर मेकिंग मी स्ट्रांग. कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है इंटरव्यूअर से. फ्रॉम माई रिजेक्शंस आई लर्न दिस, एंड दिस रॉन्ग नोशन दैट आई हैड कि बेटा तेरा जिंदगी खत्म एंड यू विल गो इनटू सच डिप्रेशन दैट यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. देन this is what I used to thought. Then it helped me to get into Deloitte. This is the thing. अच्छा, मतलब पैनिक मोड कुछ कुछ चाहिए पहला प्लेसमेंट पाने के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में ये पैनिक मोड जो है नुकसान करता है फायदे से ज्यादा. यही बोल रहे हो? यस, मैं यही बोल रहा हूँ. उस समय मैं ऐसा सोचता था, बट विथ माई एक्सपीरियंस नाउ आई नो many of my friends who were not from KIT, who were from local colleges, local engineering colleges, जब वो ग्रेजुएट हो गए, 4th ईयर भी खत्म हो गया, तभी भी उनके पास कुछ नहीं था. नो नॉलेज, नो अपॉर्चुनिटी. दे वेर इंजीनियर्स, बट उनको छोटा सा सी का कोड लिखने नहीं आता था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. बट नाउ दे आर अर्निंग 20 lakhs, 25 lakhs मोर देन मी दे आर अर्निंग. तरीका बताओ, तरीका कैसे वो लोग 20 लाख पे हैं, जल्दी बताओ. ठीक है, मैं तरीका बताता हूँ. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने जूनियर्स को बोलना चाहता हूँ कि आप अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए. आप शॉर्टकट या हरी में मत रहिए कि आपको प्लेस होना है. जो प्लेसमेंट हो गए, जिनका प्लेसमेंट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व्ड इट. जिनका प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, यू डोंट बी इन अ हरी कि कैसे भी करके मुझे प्लेसमेंट चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट द थिंग. अगर आपको स्किल नहीं आएगा और आपकी किसी कंपनी में हो भी जाती है, then also it will be very hard for you to survive inside that company. So first thing is just relax, and then you start learning something. Doesn't matter you are in 4th year, doesn't matter you are even pass out and not placed, you can still start from today. ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से सीखा है. आप आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है. अब हम इतने अच्छे जमाने में रह रहे हैं जहां पर ऑनलाइन हमको कितने सारे ऑथेंटिक कोर्सेस मिलते हैं, अच्छे कोर्सेस मिलते हैं, अच्छे टीचर्स के कोर्सेस मिलते हैं. आप उनसे सीखिए, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखिए या डेटा एनालिटिक्स सीखिए. क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ, इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा. वैसे आप किसी और फील्ड के हैं और आपको सीएस में इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हैं. आप आज से कोडिंग करना सीखिए. वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है अगर आप उसको इंटरेस्ट से सीखेंगे तो, कि चलो मैं देखता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे फंक्शन करती है. यू शुड हैव दिस कि चलो मैं देखता हूँ कि मैं खुद से कैसे बना सकता हूँ. इफ यू हैव दिस एटीट्यूड कि मुझे सीखना है, देन इवेंचुअली यू वुड गेट प्लेस. डेलॉयट में कैसे प्लेस करें बच्चों को? एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं बच्चे, क्या क्या स्किल्स चाहिए उनको? सबसे पहले तो आई विल से कि स्ट्रेस नहीं लेना. दिस इज फर्स्ट थिंग आई विल से, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हो तब आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती. ठीक है, तो सबसे पहले नो दिस दैट डेलॉयट इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ. डोंट बी so much enthusiastic about it, or else you'd fear to lose, and it's not a good feeling. It's good to be 100%, but जरूरत से ज्यादा नहीं. This is first step. Second step is that
for Deloitte, you need to have good communication skills. Communication skills, as I mean, just I said that, see, मैंने हिंदी में बात किया था, ठीक है, बट जो मैंने 20 मिनट अपने इंटरव्यूअर को पढ़ाया, मैंने उसको समझा दिया जो मुझे पढ़ाना था. मैं उसको सी प्रोग्रामिंग का फॉर लूप सिखा रहा था कि कैसे काम करता है, उससे पैटर्न्स कैसे बनाते हैं. दिस वाज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स. ठीक है, आपको अपने इंटरव्यूअर को दिखाना है कि आपने ऑलरेडी क्या क्या काम किया है. जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी हो उसमें, नहीं. अगर आप छोटा सा प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे से समझा देते हैं, अगर आप जेन्युइन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई पर्सनली बिलीव इन एन इंटरव्यू इज जेन्युइननेस. इफ यू आर ट्रूली जेन्युइन, देन यू वुड बी सिलेक्टेड. फर्स्ट थिंग तो है दैट यू नीड टू क्लियर योर रिटन. ठीक है, सबसे ज्यादा तो उसी में छाट देते हैं. सो उसके लिए यू नीड टू स्टडी एप्टीट्यूड, कैश सर का इंग्लिश, यू नीड टू नो दैट. ठीक है, आफ्टर दैट वंस यू गो इनटू जीडी और जैम, जस्ट बी नेचुरल. दिस इज व्हाट आई वुड से. बहुत ज्यादा सोच के मत जाना कि ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, क्योंकि ऑन स्पॉट सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है. आपको नहीं पता कि आपको क्या टॉपिक मिलेगा, या आपके सामने बैठे लोग कैसे क्या बोलेंगे, क्या व्यवहार करेंगे. अगर आप बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड होके जाते हो कि मुझे ऐसे ही करना है, तो बहुत ज्यादा चांस है आप अटक जाओगे. आप अगर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हुई, तो आपको समझ नहीं आया कि आपको कैसे हैंडल करना है. सो जस्ट बी नेचुरल, स्पीक व्हाट यू फील लाइक, बट अच्छे पॉइंट्स देना, यूजलेस पॉइंट्स मत देना अगर जीडी में हो तो. और कैश सर को मैंने देखा है पिछले 3 साल से वो प्रैक्टिस तो करा ही रहे हैं. यू जस्ट मेक श्योर यू अटेंड दोज प्रैक्टिसेस, अगर वो अभी भी टाइम देना चाहे तो. आई थिंक इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा. थोड़ा सा जीडी का प्रैक्टिस करके जाओगे तो इजीली तुम नेचुरल रह सकते हो. फिर इंटरव्यू का एक बहुत स्मॉल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, खासकर टेक्निकल इंटरव्यू अगर आप अटेंड करते हो तो. टेक्निकल इंटरव्यू में यू कैन ड्राइव द इंटरव्यू. ठीक है, आप अपने रिज्यूमे में जो लिखे रहोगे, बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको उसी से क्वेश्चन करेंगे. सो मेक श्योर कि जो स्किल सेट आपने रिज्यूमे में लिखा है कि आपको क्या क्या आता है, और जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए रिज्यूमे में जो आपने लिखा है, उसके बारे में थोरो रहना. वंस यू राइट दोस जेन्युइन प्रोजेक्ट्स जो आपने स्वयं खुद से बनाया होगा, सेकेंड थिंग, प्रिपेयर इट प्रॉपरली, क्योंकि आपको वहां से क्वेश्चंस पूछेंगे, और वहां से फिर आप जैसे जैसे आंसर देते हो, मोस्टली आपका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाएगा. सो बी थॉरो विद दैट. आई थिंक इससे फिर आपका प्लेसमेंट डेलॉइट में हो जाना चाहिए. सही है, बहुत सारी बातें की हमने. आपने कैसे फोड़ा, बच्चे कैसे फोड़ेंगे. अब फोड़ फाड़ का माहौल है तो उसी में बच्चे को समझ में आएगा, ये उम्मीद थी. देखते हैं इसके आगे ये लोग क्या करते हैं, और ज्यादा पढ़ाई करते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, या फिर इसी लाइन में दूसरा और कोई रोल अज्यूम करते हैं. कुछ भी करें, लाइफ का फंडा यही है कि दे शुड बी इन द राइट ट्रैक एज देयर हार्ट इज. यही लग रहा है. तो आपका हार्ट, हंट फॉर हैप्पीनेस. आपका हार्ट आपको कहाँ लेके जाएगा अगले 2-3 साल में? मेरा हार्ट टीचिंग में है सर. मैं जैसे बताया कि डेलॉइट का इंटरव्यू भी मुझे इसीलिए मिला था क्योंकि मैंने पढ़ा दिया अपने इंटरव्यूअर को भी हिंदी में. माय हार्ट इज इन टीचिंग, एंड आई स्पेशली वांट टू हेल्प दोस्त जिनको समझ नहीं आता. जिनको समझ आ जाता है, जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, दे विल मेक इट. बट जिनको समझ नहीं आता, जिनको जरूरत है, तो टेक्निकल लाइन में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन में वो डरने लगते हैं. फिर अरे यार कोडिंग है, नहीं जाऊंगा. बट इट्स नॉट द एटीट्यूड यू शुड हैव. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वुड से दैट अगर आप आज से भी स्टार्ट करना चाहते हो, आप आज से स्टार्ट कीजिए. बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, यू नीड टू स्टेप अप. अगर आप स्टेप अप करोगे, आपको हेल्प्स मिलेंगी, तो किसी से भी डरने का जरूरत नहीं है. एंड मेरा दिल तो मुझे यही ले जाएगा आने वाले टाइम में. मैं अभी से तुम्हारा एक स्टार्टअप का नाम सजेस्ट करता हूँ, एक्शॉट, ACCSHOT, एक्यूरेट शॉट. उसमें आप ऑनलाइन पढ़ा दो बस. ठीक है. ठीक है सर, डेफिनेटली. All right. Thank you, Akshat, for coming down and discussing all these points with me. And we'll surely see this helping the people through the next rounds. All थैंक the यू best. सो मच. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. मैकेनिकल वाले कैसे प्लेस होंगे? सिविल सर वालों अगर का क्या? मैकेनिकल वालों, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे अभी मैं बहुत सारे ऐसे साइट्स को जानता हूँ, ठीक है, आई डोंट नो वेदर आई शुड नेम इट और नॉट, बट दे ट्रेन पीपल फर्स्ट. ठीक है, और उसके बाद व्हेन दे गेट प्लेस, दे चार्ज मनी. जैसे इज इट ओके इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड हु
who is not from KIT, and how did it end up? Did he end up in 22 lakhs package? Is it उसका okay if I नाम take that example? टी से कुछ एक है वेबसाइट का, बता ही दो, देयर इज नो इशू. Okay, so there are multiple companies. एक वेबसाइट है स्केलर, नाम है उसका, स्केलर एकेडमी, ठीक है, which is really very good. They should go and search about it, जो कि पहले तुमको पढ़ाएगा. And second thing that I came across is Attain You. Okay, and that website claims कि even if you are not from engineering background, even if you are from arts, okay, अगर आप आर्ट से हो या बीकॉम से हो, लेकिन अगर आपको आईटी फर्म में आना है, so it just asks you 8 months, and then it asks commitment, full day commitment from morning 9 to 6, and there they will train you in full stack website development. There they will give you some on professional projects that you will make, and then they'll start referring you to startups. And once you are placed in more than 5 lakhs package, so this is the condition, you would be placed on more than 5 CTC, then they will charge the course fee, which I think is 2.5 lakh. So, you know, it is just one example. There are multiple such examples where you can actually learn, and after that, through their referrals, you can go. But still, it's a huge investment to make. So it is not required. This is just an example I'm telling you. So even if you are, suppose you are from mechanical, you are graduate and you still don't have job. If this is the case and you want a job in IT sector, then just you start studying and you start filing for offline. So my friend was there who went to Bangalore, and through his experience, I know if you are there, then there are lots of opportunities coming, especially from startups where they need people. So they don't care about your background, but if you really have skills, if you can show them projects that you have made, they'll definitely hire you. Cool.